A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of the National Movement 1870s to 1947. So class, today we will talk about these two paragraphs, and after that we will talk about Quit India movement and further on. So first is women in the freedom struggle, Ambabai from Karnataka. So as I already told you, women participated a lot in civil disobedience movement. Even in Dandi March also so many women joined and follow Mahatma Gandhi at that time. Okay, so now freedom struggle, women in the freedom struggle. What was the role of women in the freedom struggle? We are taking an example from Karnataka. We are going through the example of Ambabai. Women from diverse backgrounds participated in the national movement, young and old, single and married. They came from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women's movement, and for the and for themselves personally. Now, women from all the backgrounds, so irrespective of their caste, creed, class, either they are single or married, either they are like from conservative class or the liberal class. Conservative मतलब जहाँ पे बहुत orthodox ऐसे घर जहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल जैसे बोलते हैं ना परंपराएं जहाँ बहुत मानी जाती है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है जिन फैमिलीज को, उनको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं. या फिर फ्रीडम जो ओपन माइंडेड पर्सनालिटीज होते हैं, ऐसे घर जहाँ पे वो काफी लिबरल है, फ्री है. सब हर एक बैकग्राउंड से, डाइवर्स बैकग्राउंड से, चाहे वो अमीर है, गरीब है, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, हर क्लास से, हर कास्ट से जो है वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऑब्वियसली वुमेन, उनका कंट्रीब्यूशन जो है 50% है हमारी पॉपुलेशन में, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. Both British officials and Indian nationalists felt that women's participation gave the national struggles an immense force. Participation in the freedom movement brought women out of their homes. It gave them a place in the professions, in the governance of India, and it could pave the way for equality with men. As you all know, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो मुगल रूल था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत था, फिर मोहम्मद गौरी का थोड़ा कुछ टाइम के लिए रूल था. तो यू कैन से कि वुमेन जो है काफी ये जो दिल्ली सल्तनत और मुगल रूल के आने की वजह से उनका जो एजुकेशन है, और यू कैन से कि उनका घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था. ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, या फिर उनका इतना वो कुछ उनके प्रोफेशंस में बहुत ज्यादा उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था. बट अब ईस्ट इंडिया जब ये फ्रीडम स्ट्रगल था, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनलिस्ट ने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी, और वुमेन के लाइफ के लिए भी, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो वुमेन को अपने घरों से बाहर निकले की एक अंदर से जो झिकझिकाहट थी, या फिर जो भी आप बोल सकते हो, कि उनको एक फ्रीडम मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन जो है उनको घरों से बाहर लेकर आएंगी. उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ठीक है, वो फिर इन द प्रोफेशन, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, वो एक उनका भी जो एक प्लेस है वो क्या होगा, इट गिव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस. ठीक है, और मेन और वुमेन की जो इक्वालिटी है उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था. What such participation meant for women is best recounted by them. Ambabai of Karnataka had been married at age 12, widowed at 16. She picketed foreign clothes and liquor shops in Udupi, Karnataka में है. She was arrested, served a sentence, and was arrested. Between prison terms, she made speeches, taught spinning, and organized Prabhat fairies.
Ambabai regarded these as the happiest days of her life because they give it a new purpose and commitment. Now Ambabai 12 साल में उनकी शादी हो गई, 16 years में वो विधवा हो गई. Even she picketed, मतलब कि फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को पिकेट भी किया. पिकेट का मतलब क्या होता है, किसी को भी ऐसी शॉप में जाने से रोकना जहाँ पे शराब मिल रही है या जहाँ पे फॉरेन क्लोथ्स मिल रहे हैं. ठीक है. शी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स इन उडुपी. उनको अरेस्ट भी किया गया और वो जेल में भी रहे और फिर से उनको अरेस्ट किया गया. और अपने जेल के टाइम पे प्रिजन टर्म्स में उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी. उन्होंने स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग सीखा, उन्होंने प्रभात फेरीज निकाली. और अंबाबाई अपने जीवन के ये जो पल थे प्रिजन में, जेल के जो ये पल थे, प्रेजेंट टर्म्स था, उन्होंने अपने लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज उन्होंने माने. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर इनके लाइफ, ये जो प्रेजेंट टर्म था उसने उनके लाइफ को एक पर्पस दिया था, एक कमिटमेंट दिया था. Women, however, had to fight for their right to participate in the movement. During the Salt Satyagraha, for instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. Sarojini Naidu had to pursue him to allow women to join the movement. Yes, women, like obviously they had to fight अपने राइट्स के लिए. उनको बहुत, एक छोटे से छोटे राइट के लिए उनको बहुत लड़ना पड़ता था. इवन सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे भी मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी है, वो भी इस चीज के अपोज में थे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए. बट सरोजनी नायडू, शी परस्यूडेड हिम, शी रिक्वेस्टेड हिम, और यू कैन से कि उन्होंने जो है महात्मा गांधी को यू कैन से परस्यूड किया और कहा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन मूवमेंट के लिए भी जरूरी है और वुमेन को ये अधिकार है, दे हैव दिस राइट कि वो पार्टिसिपेट करें. ओके, सो दिस इज वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई. और नाउ वीर लखन नायक वाज हैंग्ड. सोर्स पे Baji Mohammed, president of the Nabrangpur Congress, Odisha in 1930s report. On August 25, 1942, 19 people died on the spot in police firing at Paparandi in Nabrangpur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 were injured. More than thousands were jailed in Koraput district. Several were shot or executed. वीर लखन नायक, a legendary tribal leader who defied the British, was hanged. अब ये बजी मोहम्मद जो है नबरंगपुर उड़ीसा है, उन्होंने एक रिपोर्ट की कि 19 अगस्त 1942 को 19 लोगों को जो है ऑन द स्पॉट पुलिस फायरिंग में जो है उनकी डेथ हो चुकी, उनको मार दिया गया है और बहुत सारे लोग जो है उनको बहुत सारी इंजरीज हुई है, वुंड्स हुए हैं और वो मतलब मर चुके हैं. 300 के अराउंड लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है. और उसमें से एक वीर लखन नायक थे जो ट्राइबल के लीडर्स थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या किया, डिफाई किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोला है, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट्स किए हैं, उनको हैंग कर दिया, उनको फांसी लगा दी गई है. Nayak, Bajit tells us, was not worried about being executed, only sad that he would not live to see freedom's dawn. अब उनके डेथ के टाइम पे उनसे जब पूछा गया, जब उनको फांसी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी मृत्यु से, मैं अपनी डेथ से डर नहीं रहा हूँ या फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, बट मुझे इस चीज की खुशी भी नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फ्रीडम, एक जो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, मैं वो सुबह देख नहीं पाऊंगा. Baji Mohammed mobilized 20,000 people to join the national struggle. Such a big number, 20,000 लोगों को, 20,000 people को उन्होंने जो है मोबिलाइज किया था, मूव किया था, नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे ज्वाइन करवाया था. He offered सत्याग्रह many times over. He participated in protests against the Second World War and in Quit India movement and served long-term jails. मतलब उन्होंने अपनी भी लाइफ में काफी उन्होंने मूवमेंट्स किए हैं, फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वो क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्रोटेस्ट किया है और काफी टाइम जेल में भी वो रहे हैं. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942. Demonstrators clashed with the police everywhere. Many thousands were arrested.
over 1,000 killed, many more were injured. अब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे पुलिस जो थी, हर जगह पुलिस थी, बहुत हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंजरीज भी आई। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है गांधी जी ये इंट्रोड्यूस किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। तो उस टाइम पे आपको पता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था और ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प मांगी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था। तो उसके बाद कांग्रेस के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, क्विट इंडिया 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आप बोल सकते हो आया। इससे पहले आपके बहुत सारे, एक ऑगस्ट ऑफर भी था उस टाइम पे, वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो जो थे, उन्होंने क्या किया था, ऑगस्ट ऑफर लेकर आए थे, जिसमें उनका मेन प्रपोजल था कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाएंगे और हम वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और इवन बोला था कि हम इंडियंस की जो मेंबर्स हैं, इंडियन मेंबर्स को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर यूएसएसआर भी आ चुका था। ठीक है, तो अगस्त ऑफर लेकर आए थे। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया में आए, और वो भी बहुत सारे ये प्रपोजल्स लेकर आए कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनेगी, प्रिंसली स्टेट्स को, हाँ प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम, की वो उनको भी फ्रीडम दी जाएगी कि आप इंडियन यूनियन से बाहर रह सकते हैं, डोमिनियन स्टेट होगा। तो बट जो लीग था, जो कांग्रेस लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने इस प्रपोजल को क्या किया, अपोज किया। व्हाई? बिकॉज इट हैड फेल्ड टू रिकॉग्नाइज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट वो नहीं बना रहे थे, और उनकी डिमांड, जो मुस्लिम्स की डिमांड थी कि हमें इंडिया जो वी वांट सेपरेट नेशन। ठीक है, तो अब 1942 जुलाई 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हुआ। ऑन 14 जुलाई 1942 the Congress committee passed the Quit India resolution at वार्धा में उन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पास किया। और अकॉर्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट का जो एक सिंपल जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट डिमांडेड एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि आप इमीडिएटली ब्रिटिश रूल को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इंडिया से। बस ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना। Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. वार्धा में उन्होंने ये जो पास किया था, कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को वार्धा में पास किया था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स जो हैं इमीडिएटली इंडिया को छोड़ दें। To the people he said, do or die. He raised this slogan, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. उन्होंने कहा कि जियो या मरो, ठीक है, बट अपने जो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करो, बट non-violently, not violently, but non-violently. Gandhiji and other leaders were jailed at once, but the movement spread. It specially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own governments. अब गांधी जी, बहुत सारे यूथ जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज वगैरह लीव कर दी थी। तो यूथ तो बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट हुए, और पीजेंट क्लास बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ इस चीज से, और उन्होंने बहुत जगह जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वहां पे अटैक किया, और उन्होंने बहुत जगह उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट को क्या कर लिया था, सेटअप कर लिया था। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सीवियर रिप्रेशन। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स भी जो है इसको देख के
ओके अब ब्रिटिशर्स भी जो थे उनका जो पहला रिस्पॉन्स था काफी सीवियर रिप्रेशन, बहुत, अब वो चुप तो रहने वाले नहीं थे, तो उन्होंने बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, 90,000 पीपल, 90,000 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, 1,000 अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन मेनी एरियाज, ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी जो है अब डू और डाई का महात्मा गांधी ने जो है स्लोगन रेज कर दिया था, और ब्रिटिशर्स ने भी इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था कि अपना रिप्रेशन उन्होंने स्टेप लिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, इवन बहुत सारे लोगों को मार दिया, पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी. मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स, अब एयरप्लेन्स वगैरह भी यूज होने लग गए थे, तो मशीन गन मतलब कि अब यूज उन्होंने बोल दिया था कि एयरप्लेन से भी अब जो है फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी अल्टीमेटली. बट ये जो रिबेलियन था, क्विट इंडिया रिबेलियन जो था, वो डाउन नहीं हुआ. अल्टीमेटली जो ब्रिटिश राज था उनको जो है इंडियंस की बात सुननी ही पड़ी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात सुननी ही पड़ी. सो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslim in the northwestern and eastern areas of the country. अब टू नेशन थ्योरी की बात चली थी बेटा, टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम्स और इंडियंस, ठीक है, दो सेपरेट कंट्रीज हो जानी चाहिए मुस्लिम्स के लिए और इंडियंस के लिए. तो उस टाइम पे ये टू नेशन थ्योरी थी, ठीक है. और अब मुस्लिम लीग जो है 1940 में उन्होंने बोला था कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स होने चाहिए. तो पंजाब का कुछ एरिया, आपका राजस्थान, गुजरात का कुछ एरिया, यहाँ पे बंगाल का कुछ एरिया, ये क्या थे जहां पे मुस्लिम्स ही रहते थे, उनको क्या है डिवाइड करने की बात करने लग गए थे. बोले कि हमें जो है हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज में. द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. Why did the league ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? अब देखिए, अब उस टाइम पे पाकिस्तान की कोई बात नहीं आई थी और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हमें पार्टीशन चाहिए, बट दे जस्ट वांट कि जैसे हमें कोई भी स्टेट चाहिए जहां पे हमारी जो है इंडिपेंडेंस रहे, हम इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके, इस चीज की बात हुई थी. और इससे पहले के जो मूवमेंट्स थे उस टाइम पे जब कांग्रेस लीडर्स जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे मुस्लिम्स को जो है यहाँ पे वो मिली नहीं थी, एक उनको सीट्स चाहिए थी, रिजर्वेशंस नहीं मिल पाई थी. तो इस वजह से अब वो जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड करने लग गए थे. So from the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. In developing the notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920s and 1930s. अब 1930s से जो लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, तो उन्होंने अपनी सेपरेट नेशन की जो है वो देखने लगे थे कि हमें एक सेपरेट नेशन बनाने की जरूरत है. और उनका जो आइडिया था कि हिंदूज और मुस्लिम ग्रुप्स के बीच में हमेशा से काफी टेंशन्स रही हैं, इवन 1920s में देखने को मिलता है, 1930s में देखने को मिलता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन, जो मैंने आपको बता रही थी 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें मुस्लिम को एज अ माइनॉरिटी देखा गया था. 1937 seemed to have convinced the league that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. कि उनको एज अ सेकंड फिडल, मतलब कि वो माइनॉरिटी है, उनके जो भी डिसीजंस या उनके व्यू पॉइंट्स है वो सेकेंडली मतलब मेजरली नहीं देखा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंटली नहीं देखा जाएगा, एज अ मतलब कि सेकंड फेज में या सेकंड फिडल में ही देखा जाएगा कि जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उनका क्या है, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी. इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड, इवन उनको मानना था कि मुस्लिम्स जो है अनरिप्रेजेंटेटेड रहेंगे. कांग्रेस जो है जो जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनेगी वो क्या है, मुस्लिम की जो डिजायर्स है, जो मुस्लिम लीग की जो डिजायर्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी.
Even in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. 1937 में जो United Provinces present उत्तर प्रदेश है वहां पे भी जो है मुस्लिम लीग की जो डिजायर्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी. Okay, so now the Congress failures to mobilize the Muslim masses in the 1930s allowed the League to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. At the end of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. The talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. अब देखिए जो कांग्रेस की जो फेलियर थी कि वो मुस्लिम मासेस को, मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है अपने में वो मूव नहीं कर पा रही थी और उनके साथ नहीं मिला पा रही थी, तो इस वजह से लीग, जो मुस्लिम लीग थी, वो उनको सोशली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला. इवन जो 1940s में कांग्रेस लीडर्स जब जेल में थे उस टाइम पे वो सोशली बहुत ज्यादा सपोर्ट ले रहे थे, मुस्लिम लीग लोगों का सपोर्ट ले रहे थे. और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स ने भी है ना, अब ब्रिटिशर्स के पास भी अब पैसा नहीं था. ब्रिटिशर्स में का जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है बहुत सारी चीजें एकदम, उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जो इकोनॉमी थी बिल्कुल लो हो चुकी थी. वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला था. तो ब्रिटिशर्स भी अब है ना कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करने के लिए वो ओपन थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंडियंस जो है अब यहाँ पे अपनी फ्रीडम लेके रहेंगे. तो उन्होंने भी नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया. बट जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने वो लीग ही खाली अपने लिए बात कर रही थी कि मुस्लिम के लिए अलग सेपरेट नेशन होना चाहिए और इस टाइप की बात वो खुद ही कर रही थी. और कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो मुस्लिम्स और उनका जो एक हमारे लिए सेपरेट स्टेट नहीं होना चाहिए. कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी. क्यों? क्योंकि कुछ मुस्लिम्स जो थे अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे थे और उसमें से एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम बादशाह खान भी बोलते हैं और उनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं. ये मुस्लिम ही थे और ये जो टू नेशन थ्योरी थी कि दो नेशन होने चाहिए हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. खान अब्दुल गफ्फार खान, the Pashtun leader from the northwest frontier province with his colleagues at a peace march through Bihar, March 1947. This is Khan Abdul Ghaffar Khan, महात्मा गांधी, ठीक है, इन लोगों के साथ पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल मार्च कर रहे हैं. और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी बोलते हैं. एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमत गर्स, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट. नॉन वायलेंटली उन्होंने भी नॉन वायलेंस को क्या किया था, सपोर्ट किया था. अमंग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंसेस, उनके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो पठान्स थे उनके साथ मिलके उन्होंने ये खुदाई खिदमत गर्ज मूवमेंट चलाया था. बादशाह खान ने जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, ओपोज किया. इवन उनके जो मुस्लिम लीग के कांग्रेस कलीग्स थे उनको भी क्रिटिसाइज किया कि 1947 का डिवीजन नहीं होना चाहिए. तो सो रिमेंबर दिस. खान अब्दुल गफ्फार खान इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी बिकॉज उन्होंने भी जो नॉन वायलेंट मेथड्स को क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे. So अब देखिए elections to the provinces were again held in 1946. The Congress did well in the general constituencies. General constituencies में अच्छा रहा था. और 1946 का जो indirect elections था वो किस बेसिस पे हुआ था, जो 1937 का इलेक्शन हुआ था ना, जिसमें all over the India से representatives थे. तो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी. उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी. इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी. बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज स्पेक्टेक्युलर. अब
League success in the seats reserved for Muslim was spectacular. Muslim reservation भी काफी सही रही. It persisted with its demand for Pakistan. अब मुस्लिम्स ने भी जो है अच्छा खासा जो है सीट्स रिजर्व कर लिया था और उन्होंने अब बोला कि हमें पाकिस्तान की उन्होंने डिमांड की थी. So in March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand. And ये जो डिमांड थी ना, ये 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे चल रही थी. To examine this demand and to suggest a suitable political framework for free India. अब 3 लोगों के 3-member मिशन बना था, दिल्ली में भेजा गया था, उनके मिशन को चेक किया गया था और उनके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सजेशन के लिए उनको बोला था कि आप एग्जामिन कीजिए और बताइए आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया कि उनका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है कैसा रहेगा. This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific items of the proposals. Partitions now became more or less inevitable. अब क्या हुआ था, अब जो ये मिशन बना था उन्होंने तो पार्टीशन को क्या कर दिया था, उन्होंने बोला था पार्टीशन जरूरी नहीं है, जो पूरी कंट्री है इंडिया उसको एज अ यूनाइटेड कंट्री रहना चाहिए. बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो अग्री नहीं कर पाए, कुछ जो प्रपोजल्स थे उनके अग्री नहीं कर पाए थे और अब जो पार्टीशन जो था वो ही एक मैटर रह रहा था, वही एक अवॉइड नहीं कर पा रहे थे हम. इट बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, इट बिकेम मोर और लेस प्रिवेंटेबल. ठीक है, क्या प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन. ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ रहता है, उसके बाद एल्सवेयर है. सो इस पैराग्राफ में आपका कैबिनेट मिशन जो था ना 19 उसी के फेलियर की बात की गई है कि कैसे कैबिनेट मिशन फेल हुआ. मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. और मुस्लिम लीग भी बहुत ज्यादा फ्यूरियस थी पाकिस्तान के लिए. और सो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने एज अ डायरेक्ट एक्शन डे क्या किया, अनाउंस कर दिया था. एंड इसी दिन उन्होंने बहुत सारे राइट्स, दे ब्रोक सो मेनी राइट्स, बहुत सारे दंगे फसाद किए कलकत्ता में, बहुत दिनों तक चला वो, इससे हजारों लोगों की जो है डेथ हुई थी. फिर मार्च 1947 में बहुत नॉर्थ इंडिया में भी जो ये वायलेंस जो है स्प्रेड हो चुका था. 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटैलिटीज. बहुत सारी ब्रूटैलिटीज देखने को मिली पार्टीशन के टाइम पे. बहुत लोग आपस में बिछड़ गए थे. मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स. उनको घर छोड़ के भागना पड़ा. वुमेन के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ, रेप्स हुए बहुत सारे लोगों को. बहुत सारी वुमेन को एज अ स्लेव भी जो है रहना पड़ रहा था हिंदूज के अंदर और कुछ मुस्लिम्स के अंदर हिंदू वुमेन को. torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. अब उनको refugees in alien lands, अब एकदम से जो रातों रात जो रेड टेप लाइन आ चुकी थी, अब वो अपने ही घर में एज अ रेफ्यूजी रहने लग गई थी कि उनको पनाह मिली है. Partition also meant that India changed, many of its cities changed and a new country Pakistan was born. अब ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया है. 1972 में बांग्लादेश बना, उससे पहले वो पाकिस्तान का पार्टी था. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and the violence to partition. अब पेन भी था, खुशी थी इंडिपेंडेंस की, तो साथ में जो था पेन भी था. तो जो ये इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन जितनी हमें खुशी थी उससे ज्यादा हमें दुख भी था, क्योंकि हमारी कंट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी. एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, रेफ्यूजी फ्रॉम राइट टाउन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड. इतने सारे लोग जो है जो पंजाब से दिल्ली भेज दिए गए थे जब पार्टीशन हुआ था, तो फूड और शेल्टर की सर्च में जो है ये रेफ्यूजीज यहाँ पे बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं हमें. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. गो थ्रू दिस चैप्टर, गो थ्रू दिस पैराग्राफ.